Good morning, students. Welcome in social science virtual class. I hope all of you will be fine. Students, today we will continue or complete chapter 3 of history, that is ruling the countryside. Ruling the countryside means ruling the village areas, rural areas. We have discussed in our previous virtual classes, British introduced three types of settlements to collect taxes, revenue from the farmers. These were permanent settlement, Mahalwadi settlement, Rohitwadi settlement. All was not well. Why all these settlements were not good? Because taxes were very high. Farmers were unable to pay the taxes, or when they were unable to pay the taxes, their land was taken from them. If they borrow the money from the money lender, if they fail to repay the loan, even then land was taken from them by money lenders. Students, British realized that they could use the rural area countrysides not only to collect the taxes but also to grow the crops. So they use our village areas to grow the crops which were required by the British for their industrial development. So we here are discussing they forced the Indian to grow indigo. Indigo was cultivated by two ways, niche cultivation and Rohiti cultivation. In niche cultivation, planter use its own land to grow the indigo. निज कल्टीवेशन में प्लांटर अपनी ही लैंड यूज़ करता था इंडिगो को ग्रो करने में, और बोट दी फ्रॉम अदर पर्सन और टुक दी लैंड ऑन रेंट लीज, रेंट पर लेकर या किसी से लीज पर लेकर प्लांटर खुद ही अपनी लैंड पर इंडिगो प्लांटेशन करता था. इन plantation means growing a single crop on large area is known as plantation farming. Here we are discussing indigo plantation. And second was Rohiti cultivation. In Rohiti cultivation, they force the farmer or village headman to grow the indigo in their own field. Most of the indigo was grown in Rohiti cultivation. So what were the how indigo was produced? Indigo was, we discussed, produced in India two ways, niche cultivation or Rohiti cultivation. Here we are discussing how indigo is used for to dye the cloth. Because of industrial revolution, cotton textile, more and more dyes were used for color the clothes, so they need the indigo. तो when it was grown, so how was indigo, ये कलर किस तरह से बनाया जाता था इंडिगो प्लांट से, ये आपको पिक में दिखाया भी गया है. स्टूडेंट, इंडिगो was carried to the factory. Which factory? Indigo factory. Indigo villages were near the indigo factories. Women usually carried the indigo plant to the works. वर्क्स मीन्स कंटेनर, वेसल्स. ये आपको पिक में लगातार दिखाए भी गए हैं. 3-4 वेसल्स आर शोन हेयर. फॉर मेकिंग द इंडिगो, टू मेकिंग द कलर, दे नीड 3-4 इंडिगो वर्क्स. इन कंटेनर्स की ज़रूरत थी. तो किस तरह से इस कलर को बनाया जाता था इंडिगो से, आपने देखा भी होगा, हम घर में भी यूज़ करते हैं. वाइट कपड़ों को जब वॉशिंग कर देते हैं तो नील में डिप किया जाता है टू मेक द कलर ब्राइट. और उस समय ये यूज़ किया जाता था किसके लिए? डाई,
फ्लावरिंग के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए कपड़ों को इंडिगो कलर को यूज़ किया जाता था. So 3-4 what's are container are required to make the indigo. So what was done? Each way what had a separate function. The leaves spread of the indigo plant were first soaked in the warm water in a what. उसके लीव्स को अलग करके उसे कंटेनर में वार्म वाटर में डाल दिया जाता था. और मैनी आवर्स it was soaked into the water, or when it was fermented, then it was water was boiled. So now when the planted fermented liquid began to boil and bubble, now the rotten leaves were taken out and the liquid drained into another vats. जब बॉइल्ड होने लगता था तो उसे दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाता था. नाउ रोटन लीव्स वर टेकन आउट एंड द लिक्विड ड्रेन इनटू अनदर वत कंटेनर दैट वाज प्लेस्ड जस्ट बिलो द फर्स्ट वत, जो फर्स्ट कंटेनर के साथ नीचे ही रखा होता था. In the second one, the solution was continually stirred and beaten with paddles. आपको पिक में भी दिखाया गया. The what beater, the indigo worker here is standing with the paddle that was used to stir the solution in what. This worker had to remain in waist deep water for over 8 hours टू बीट द इंडिगो सोल्यूशन. स्टूडेंट आपको फिगर 12 में दिखाया गया है कि वत बीटर, ये जब सेकंड कंटेनर में उस लिक्विड को डाला जाता था तो ये कुछ आवर्स के लिए 8 आवर्स तक उस कंटेनर में खड़े रहकर उसको पैडल से हिलाते रहते थे कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए. देन वट वाज स्टीयर्ड एंड बीटन विद पैडल. When the liquid gradually turned green, then blue, lime water was added to the what. तब lime water को उसमें मिला दिया जाता था. Gradually indigo separated out in flakes. A muddy sediment settled at the bottom of the what and clear liquid rose to the surface. आपने घर में कई बार चीज़ बनते हुए देखा होगा. जैसे जब दूध बॉइल्ड होने लगता है तो उसमें लाइम वाटर मिक्स कर देते हैं या सिट्रिक एसिड डाल देते हैं तो हम क्या देखते हैं, थिक वाइट सब्सटेंस नीचे रह जाता है जिसे हम चीज़ कहते हैं और वाटर ऊपर आ जाता है. इसी तरह से ही इसमें क्या किया जाता है, इंडिगो प्लांट में पहले लीव्स को डिप करके पानी में, गर्म पानी में रखा जाता है, बॉइल्ड किया जाता है और बॉइल्ड होने के बाद उसे सेकंड लीव्स को अलग कर दिया जाता है, उस वाटर को सेकंड कंटेनर में डाल दिया जाता है. और जब उसका कलर ग्रीन हो जाता है और ग्रीन से फिर ब्लू हो जाता है, देन दे ऐड दी विच वाटर, लाइम वाटर को उसमें मिक्स कर देते हैं. सो व्हाट वाज हैपन, इंडिगो अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है, एक पल्प सा नीचे की तरफ रह जाता है. स्टूडेंट व्हाट वाज हैपन, ग्रेजुअली इंडिगो सेपरेटेड आउट इन फ्लेक्स, अ मडी sediment settled at the bottom of the vat and a clear liquid rose to the surface. The liquid was drained off and the sediment, the indigo pulp transferred to the another vat known as settling vat and then pressed and dried for sale. और ये जो पल्प होता है इसे थर्ड कंटेनर में डाला जाता है, प्रेस किया जाता है और फिर इसको सेल किया जाता है. तो हेयर वी डिस्कस हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस. इंडिगो डाई किस तरह से बनाई जाती थी. स्टूडेंट, डू यू नो हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेशन. इट वाज सो ऑप्रेसिव मीन्स इंडिगो कल्टीवेशन वाज व्हाट वाज हैपन, सो ऑप्रेसिव, बहुत एक्सप्लॉइटिव था. व्हेन फार्मर ग्रो द इंडिगो इन देयर फील्ड, देयर लैंड बिकम बैरन मीन्स इनफर्टाइल हो जाती थी. दे कैन नॉट यूज देयर लैंड टू ग्रो दी राइस और टू ग्रो दी अदर क्रॉप्स इन देयर फील्ड. So what was the money which was given to them was very less. So they become annoyed
कि वी वॉन्ट crop from our field not once or twice every year. We want good crops from our field. हमें अपने खेतों से 1 या 2 साल अच्छी क्रॉप्स नहीं चाहिए, हमेशा बढ़िया क्रॉप्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है. So what was happening? After the growing of indigo crops, land become infertile, land become barren. So it led to blue rebellion. So what was in March 1859, thousands of Rohis in Bengal refused to grow indigo. As rebellion spread, Rohit refused to pay rents to the planters and attacked indigo factories armed with swords and spears, bow and arrows. मार्च 1859 में थाउजेंड ऑफ फार्मर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इंडिगो को ग्रो नहीं करेंगे. और जब प्लांटर्स उनसे रेंट कलेक्ट करने आते थे, दे अटैक्ड ऑन देम एंड अटैक्ड on the factory with arms, spears, bow, arrows. Women turned up to fight with pots, pans, किचन इम्प्लीमेंट्स. ऑल वर एनॉयड. उन्हें था कि किसी भी हालत में हमें अपने फील्ड में इंडिगो ग्रो नहीं करनी. Those who worked for the planters were socially boycott. जो प्लांटर्स के लिए काम करते थे, लोगों ने उनका बाइकाट कर दिया था, उनसे बोलचाल बंद कर दी थी. एंड द गोमास्तास, द मिडल मैन बिटवीन प्लांटर्स एंड फार्मर्स वर बिटन बाय the farmers, and they decide they would not take advance to sow the indigo nor be bullied. Bullied means not be harmed by planters. लाठियास. लाठियास क्या होते हैं बेटा? जो प्लांटर्स होते थे वो अपने पास, जैसे हम सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, वो उस समय एक लाठी रखे हुए एक पर्सन को अपने पास रखते थे. अगर कोई उन्हें मना करता था, रिफ्यूज़ करते थे, तो वो लोग उनकी पिटाई करते थे. सो व्हाट वाज हैपन? द लाठियाल वर स्ट्रॉन्ग मेंटेन बाय द प्लांटर. उनसे भी फाइट की किसने? रोहित्स ने. सो दिस टाइम दे डिसाइडेड दे वुड नॉट ग्रो इंडिगो इन देयर फील्ड. सो इन 1859 इंडिगो रोहित्स felt that they had the support of local zamindar, village headmen, because all were unhappy with the indigo plantations. So in many villages, headmen who had been forced to sign indigo contract collect the farmers and fought the pitched battle fight with the लाठियाल्स. उनके साथ फाइट की, उन्हें डिफीट किया. एंड मैनी अदर वेंट विलेज टू विलेज आस्क टू द फार्मर्स कि नाउ वी वुड नॉट ग्रो इंडिगो इन आवर fields. So indigo planters this time also hoping that कि British government would help them. But what was happened? After 1857 revolt, they were worried about possibility of second revolt. When they got the news of indigo revolt in few district, जब उन्हें ये न्यूज़ मिली गवर्नमेंट को कि इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में फार्मर्स ने रिवोल्ट कर दिया है, तो उसी समय लेफ्टिनेंट गवर्नर वेंट टू दी field to check indigo districts. The Rohit saw the tour as a sign of government sympathy for their miserable conditions. फार्मर्स को ये लगा कि ये जो गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर विजिट पे आए हैं, उन्हें उनके साथ संपैथी है. और व्हाट वाज हैपन? इन द इवनिंग मैजिस्ट्रेट एशले एडन इशूड अ नोटिस stating that Rohit would not be compelled to accept इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट. और उन्होंने मैजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर दिया कि अब प्लांटर्स फार्मर्स को कंपेल नहीं करेंगे इंडिगो को ग्रो करने की. और जब ये न्यूज़ क्वीन विक्टोरिया के पास पहुंची, तो उसने भी कहा इंडिगो नीड नॉट बी सोन, इंडिगो को लगाने की ज़रूरत नहीं है. एडन वाज, जो मैजिस्ट्रेट थे जिन्होंने ये जजमेंट दी, ही ट्राइड टू please the farmers to control this situation
As the rebellion spelled, intellectuals from Calcutta rushed to Indigo district. Intellectual पीपल जो वाइज मैन थे वो वहाँ फार्मर्स की कंडीशन देखने वहाँ गए. दे रोट अबाउट द मिजरी ऑफ द रोए ट्राइनी ऑफ द प्लांटर्स एंड हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम. उन्होंने लिखा भी कि कितना एक्सप्लॉइटिव सिस्टम है, कितनी मिजरेबल कंडीशंस थी वहाँ फार्मर की. Worried by the rebellion, government brought in the military to protect the planters. इस रेबिलियन के डर से, चिंता से गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिलिट्री को बुला लिया प्लांटर्स की प्रोटेक्शंस के लिए और एक कमीशन की सेटअप किया टू फाइंड द रीज़न ऑफ इंडिगो रिबिलियन. इसका रीज़न क्या रहा, लोगों ने रिबिलियन क्यों किया, रिवोल्ट क्यों किया. द कमीशन हेल्ड प्लांटर गिल्टी एंड क्रिटिसाइज देम फॉर कोरेसिव मेथड दे यूज्ड विद द इंडिगो कल्टीवेटर्स. कमीशन ने स्टूडेंट्स क्या रिपोर्ट दी कि जो प्लांटर्स हैं उन्होंने एक्सप्लॉइटिव मेथड यूज़ किए हैं इंडिगो को ग्रो करने के. और किसकी गलती है, प्लांटर्स की ही गलती है. उन्हें फार्मर्स को फोर्स नहीं करना चाहिए था इंडिगो को ग्रो करने के लिए. द कमीशन आस्क्ड द रॉय टू फुलफिल देयर एक्सिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बट आल्सो टोल्ड them they could refuse to produce indigo in future. कि अभी तो जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें वो तो पूरे करने पड़ेंगे, पर आने वाले टाइम में वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि वो इंडिगो को ग्रो नहीं करेंगे. फार्मर्स को राइट दिया कि अब वो उन्हें कोई लाठी वाले या सिक्योरिटी पर्सन जो हैं उन्हें हार्म नहीं पहुंचाएंगे अगर वो रिफ्यूज़ कर देंगे कि वो इंडिगो अपने फील्ड में ग्रो नहीं करेंगे. स्टूडेंट कमीशन के मेंबर्स ने एक इंटरव्यू भी लिया हदजी मोला जी का एंड इंडिगो कल्टीवेटर्स का. उनसे पूछा गया कि आर यू विलिंग टू सो इंडिगो एंड इफ़ नॉट ऑन व्हाट फ्रेश टर्म वुड यू बी विलिंग टू डू इट. क्या आप अपने फील्ड में अब इंडिगो लगाना चाहेंगे. ही सेड I am not willing to sow and I don't know that any fresh term would satisfy me. मैं बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहूँगा और मैं नहीं जानता कि मुझे कोई टर्म सेटिस्फाई भी करेंगी. स्टूडेंट उस समय 1 रुपीज़ एक बहुत बड़ी बात होती थी, 1 पैसे में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी. तो उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि वुड यू नॉट बी विलिंग टू सो एट अ रुपी अ बंडल. क्या 1 रुपये में भी आप बंडल ग्रो नहीं करना चाहोगे इंडिगो का. हज्जी मुल्ला कहते हैं नो आई वुड नॉट, रेदर देन सो इंडिगो आई विल गो टू अनदर कंट्री एंड आई वुड रेदर बेग देन सो इंडिगो. मैं किसी दूसरी कंट्री में चला जाऊंगा, भीख मांग कर खाना पसंद करूंगा, पर मैं अपने फील्ड में इंडिगो ग्रो नहीं करूंगा. क्योंकि उन्हें पता था इंडिगो ग्रो करने का मतलब लैंड को इनफर्टाइल करना था, बैरन करना था. आने वाले टाइम में वे उस पर कोई भी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते थे. ये हदजी मुल्ला ने उस समय जब उनका इंटरव्यू लिया गया इंडिगो प्लांटर का, तो उन्होंने ये कहा. आफ्टर द रिवोल्ट क्या हुआ स्टूडेंट, इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स, डिक्लाइन इन बंगाल, बट प्लांटर नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार. अब वो बंगाल से शिफ्ट होकर बिहार में चले गए. विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th century द बिजनेस वाज एडवर्सली अफेक्टेड, बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन. जब सिंथेटिक डाई आ गई तो उसकी डिमांड बढ़ गई, पर फिर भी उन्होंने इंडिगो का प्रोडक्शन को कंटिन्यू किया, उसको एक्सपेंड किया. पर बंगाल में फार्मर्स ने इंडिगो का प्रोडक्शन बंद कर दिया या कम कर दिया. अब वो ये प्रोडक्शन कहाँ करने लगे, बिहार में. और जब महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए तो बिहार के एक फार्मर ने उन्हें फोर्सफुली कहा, परस्यूडेड देम टू विजिट दी चंपारण एंड सी दी कंडीशंस ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर. तो उन्हें
महात्मा गांधी जी को फोर्स किया कि जाकर उनकी मिजरेबल कंडीशन देखें कि किस तरह से इंडिगो प्लांटर उन्हें फोर्स कर रहे हैं अपने फील्ड में इंडिगो लगाने के लिए, और प्राइस भी बहुत कम दे रहे हैं, इससे उनकी लैंड भी इनफर्टाइल हो रही है। तो ये कहा कि आप एक बार चंपारण चलें, बिहार चलें और उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करें। महात्मा गांधी visit in 1917 marked the beginning of चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। तो चंपारण मूवमेंट स्टार्ट की बिहार में किसके लीडरशिप में? महात्मा गांधी की। एंड मेड देम दे वुड नॉट फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो द इंडिगो इन द बिहार। महात्मा गांधी की लीडरशिप में वहाँ लोगों ने रिवोल्ट किया, रिफ्यूज़ किया, और अब वहाँ पे भी ये हो गया कि प्लांटर्स अब फार्मर्स को फोर्स नहीं करेंगे इंडिगो को ग्रो करने के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिगो को ग्रो करने से क्या हो जाता था? लैंड इनफर्टाइल हो जाती थी एंड दे कैन नॉट यूज देयर लैंड टू ग्रो राइस और अदर क्रॉप्स इन फ्यूचर। स्टूडेंट, व्हाट वाज हैपनिंग इन आर इंडिया? Indigo planters were forcing us to grow indigo. Same thing was happened in West Indies. वेस्ट इंडीज़ कहाँ है? इंडिया के वेस्ट में, अफ्रीका में, वहाँ कैरिबियन सी में। वेस्ट इंडीज़ वाज अंडर द फ्रेंच कॉलोनी। फ्रेंच ने उन्हें, जैसे हमारी कंट्री को ब्रिटेन ने कंट्रोल किया हुआ था, आर कंट्री वाज कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, वेस्ट इंडीज़ वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। वहाँ पर भी इसी तरह से ही प्लांटेशन फार्मिंग की जा रही थी। जो कॉलोनीज कंट्रीज होती हैं, हमने शुरू में भी पढ़ा है, व्हाट डू यू मीन colonization when one country control the other country and led to the social, economic and political changes and use the resources of that country for their own welfare। यहाँ पर फ्रांस वेस्ट इंडीज़ में इंडिगो प्लांट ग्रो करा रहा था और इसे यूज़ कर रहा था अपने फ़ायदे के लिए, वहाँ पर उन्हें एक्सप्लॉइट किया था। ये जो इंडिगो प्लांटेशन सिर्फ इंडिया को ही जो ब्रिटिशर्स थे एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे थे, वेस्ट इंडीज़ को कौन एक्सप्लॉइट कर रहे थे? फ्रेंच प्लांटर्स वहाँ उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे। उसी तरह से जैसे हमने अभी डिस्क्राइब किया, अपने यहाँ की वेसल्स रखे हुए हैं, उसे बॉइल्ड किया जाता था, शिफ्ट किया जाता था नेक्स्ट कंटेनर में, और लास्ट में प्रेस करके उसे सील किया जाता था। यही सब यहाँ दिखाया गया है। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। इस लेसन में हमने क्या पढ़ा? रूलिंग दी कंट्री साइड, 3 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट इंट्रोड्यूस। कोई भी अच्छी नहीं थी बिकॉज टैक्सेस वर वेरी हाई, फार्मर्स वर एडवर्सली अफेक्टेड दीज 3 सेटलमेंट। एंड वी आल्सो डिस्कस ब्रिटिशर्स use our country to grow the crops, or we discussed in detail growing of indigo. Indigo was grown under which method? निज कल्टीवेशन एंड रोहिती कल्टीवेशन। निज कल्टीवेशन में प्लांटर अपने ही फील्ड में इंडिगो को ग्रो करता था, और 25% के आसपास जो इंडिगो था निज कल्टीवेशन में होता था। इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती थी? फर्टिलाइज लैंड वाज नॉट अवेलेबल, डिफ़िकल्ट टू मोबिलाइज दी लेबर्स, और रोहिती में दे फोर्स द विलेज हेडमैन, फोर्स द फार्मर्स टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट टू ग्रो इंडिगो इन देयर फील्ड। क्योंकि इंडिगो कल्टीवेशन से लैंड इनफर्टाइल हो जाती थी, तो उन्हें ये फोर्स किया जाता था कम से कम 25% लैंड पर वो क्या ग्रो करेंगे? इंडिगो को ग्रो करेंगे। और फिर हमने डिस्कस किया हाउ इंडिगो वाज प्रोड्यूस। पहले इंडिगो प्लांट को ग्रो कैसे किया जाता था वो डिस्कस किया। नाउ वी डिस्कस कि इंडिगो फार्मिंग मेक दी what was adversely affected the farmers because it made their land barren, infertile. So they revolted against the indigo planter. This rebellion is known as Blue Rebellion and become successful to get rid of this indigo cultivation. अब वो इन्हें फोर्स नहीं कर सकते थे to grow the indigo. Students, read the lesson, mark the line as mark the lines as I have underlined in my book. You have to underline
the lines in your book. Student, stay at home, stay healthy, maintain social distancing, wear the mask, and wash your hands again and again. Keep keep learning. Thank you. Have a nice day.